ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے۔ عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو۔ یہ ادھر سے چل پڑا، ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہ کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر اپنی قتل گاہوں کو 3 دن کے اندر اندر توڑو۔ تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ گیا اور یہ آواز وہاں بھی لگا ہے۔ پھر جبل ابی قبیس پہ آ گئے اور وہاں اس نے یہ آواز لگائی، لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کے اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے کنکر اور اس کے ٹکڑے نہ گرے۔ تو حضرت عاتقہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب سنایا۔ انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا، چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سین حرم میں طواف کے لیے گئے تو ابو جہل ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بل فضل، بنو ہاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا؟ کہتے میں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے یہ خواب سنایا، میں نے ٹال مٹول کر دی، لیکن اس نے خوب پراپیگنڈا کیا، بلکہ کہا کہ اگر 3 دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لکھ کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا خاندان بنو ہاشم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سخت کوسنے دیے کہ وہ بدبخت پہلے تمہارے مردوں پہ بات کرتا تھا، اب عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگ گیا۔ کہتے میں غصے سے نکلا، میرا خیال تھا جب ملے گا اگر کوئی بات کرے گا تو پھر میں اس کو خوب جواب دوں گا۔ جو ہی میں سین حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا، میں سمجھا کہ شاید میرے سے ڈر کے بھاگ گیا، لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ زمزم غفاری آ پہنچا تھا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے تھے، ناک کاٹ دی اور اپنی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور زور زور سے کہا اللتیمہ اللتیمہ اے ادرک اللتیمہ، اور تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو مدد کو پہنچو۔ کہتے ہیں بھگدڑ مچ گئی کیونکہ اس قافلے میں پورے مکے کے لوگوں نے مال لگایا ہوا تھا، لہٰذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے اور 3 دنوں کے اندر اندر وہ مکے سے کوچ کر گئے۔ ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد آ پہنچا کہ ہم بخیریت گزر آئے ہیں، تم واپس ہو جاؤ۔ سارے صاحب لوگوں نے مشورہ دیا لیکن ابو جہل کہتا تھا نہ، ہم نے بدر میں جانا، 3 دن تک وہاں ہم نے قیام کرنا، وہاں شرابیں پئیں گے، وہاں جشن منائیں گے، پورے عرب پہ ہماری دھاک بیٹھے گی۔ اسے بڑے لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا۔ ہر منزل پہ ہر روز کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا، 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتا اور یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ ادھر حضور نے صحابہ کو جمع کیا، مٹھی پر جماعت، ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو تیار کیا تھا، ایک چھوٹی سی کائنات اور دنیا جو حضور نے تیار کی تھی۔ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے بتاؤ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد نے عرض کی حضور آپ برق الغماد تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دورہ، ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد، عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل سے کیا ڈر، زیر دامان محمد۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا شیرو علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق پھر اٹھے تو حضور نے پھر کہا شیرو علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے، عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گردہ بے بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ حضور آپ کا حکم تو ہو۔ آقا کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا چلو
बदर की तरफ पेशकदमी हुई। 313 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला जब मदीने से निकला तो अजीब हालत थी। मुख्तसर सामान था, 2 घोड़े, 6 ज़िरहें, 8 शमशीरें। पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। मुसलमान जब निकले ना तो उनके पास तलवारें भी 8 थी, और वो भी मुअर्रिखीन लिखते हैं सलामत नहीं थी। किसी का दस्ता टूटा हुआ था, किसी की नोक नहीं थी, कोई जहर में बुझने वाली थी। और 2 घोड़े थे, 70 ऊंट थे, और 6 ज़िरहें थी। जिनके पास तलवारें नहीं थी उन्होंने खजूरों के डंडे तोड़ लिए। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर था, कैसा माहौल था। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर काली कमली वाला था। अजीब रंग था इस लश्कर का, चश्मे फलक ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। फाका मस्त लोग जिनके बदन पे पूरे कपड़े भी नहीं है, और दुनिया की उस वक्त की बड़ी ताकत से टक्कर देने के लिए पूरे जज्बों की फरावानी से जब मदीने से बाहर निकले तो यहूदी अपनी दुकानों पर बैठे हुए थे। इन्हें देखकर कहने लगे, मुसलमानों तुम्हारे पास ना कोई असला, ना कोई नेज़े, ना कोई भाले, ना कोई खंजर, ना तेगो तबर, तुम किस रास्ते पे जा रहे हो? आलाते हरबो ज़रब तो तुम्हारे पास है नहीं। तो मुसलमानों ने हुजूर की तरफ इशारा करके कहा, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। हमारा तो आसरा हुजूर की जात है, हम तो हुजूर के सहारे जा रहे हैं। बनाकर अपने सीनों की सफर आयात कुरान को, बज़ाहिर चंद तिनके रोकने निकले थे तूफान को। ये चंद लोग मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 अशखास के लिए 1 ऊंट मुकर्रर कर दिया कि बारी बारी सवार, और अपने लिए हुजूर ने 1 ऊंट तन्हा मुकर्रर नहीं किया, बल्कि अपने साथ भी 2 सवार मुकर्रर किए, हजरत अबू लबाबा और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और खुद हजरत अली मुर्तज़ा और हजरत अबू लबाबा ने अर्ज़ की, हुजूर हम अपनी बारियां छोड़ते हैं, आप सवार हैं। फरमाया, ना तो तुम मेरे से ताकतवर हो कि तुम चल सकते हो पैदल, मैं नहीं चलता, और ना मुझे सवाब से बेनियाज़ी है कि सवाब तुम्हें चाहिए मुझे नहीं चाहिए। फरमाया, अपनी बारी पे तुम सवार होगे, अपनी बारी पे मैं सवार होगा। मोहब्बत के जोश में ये काफिला आगे जा रहा है। अजीब हालत है, फाका मस्त है, खजूर को चूस के रोजा रखते हैं, उसी को चूस के इफ्तार कर लेते हैं। रास्ते के अंदर एक जगह आई मलजुज़बिया, वहां एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। एक सहाबी ने कहा, सल्लम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर है, इन्हें सलाम करो। वो कहने लगा, मैं तो नहीं सलाम करता, मैं तो सलाम तब करूंगा अगर ये बताएं मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। हजरत सलमा बिन सलामा 9 की उम्र है, चढ़ती जवानी। उन्होंने उसके पास जाकर कहा, ये बात तो हुजूर से पूछता है, ये तो हुजूर के गुलाम से पूछ ले, वो भी बता देगा। फरमाया, नज़ौता अलैहा वफ़ी बतनहा मिनका सकला, हुजूर ने फरमाया, बस करो, तुमने तो उसको रुसवाई कर दिया है। तो हुजूर आगे बढ़े। अब जब हुजूर वहां पहुंचे तो काफिरों ने पहले ही ऊंची जगह पे पथरीले इलाके में पड़ाव डाल लिया हुआ था। वहां उन्होंने अपने खेमे गाड़ लिए थे, और जिस समत हुजूर थे ये इलाका नशेबी था और रेत थी, चलते हुए पांव धनसते थे और चलना मुश्किल हो रहा था। सख्त गर्मी, 17 रमजान। हुजूर अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे। हजरत साद ने अर्ज की, हुजूर अगर तो अल्लाह का हुक्म है यहाँ खेमे गाड़ने का तो मैं कुछ नहीं अर्ज करूंगा, लेकिन अगर आप राय लेना चाहें तो मेरा ख्याल है इन कुओं के आगे हम अपने खेमे नस्ब कर लें, ताकि ये कुएं हमारी पुष्ट में चले जाएं, और इन कुओं को पाट दें, बंद कर दें। थोड़ा थोड़ा पानी था कुओं में, और वो भी बहुत नीचे। अब जब हुजूर वहां पहुंचे, यहाँ मुअर्रिख़ इस्लाम हफ़ीज़ जलंधरी ने वादी बदर की फरियाद को बयान किया। वादी बदर ने जब अपने दामन में उतरते हुए इन मुकद्दस मेहमानों को देखा तो वादी बदर ने अल्लाह से फरियाद की। सुनो बदर ने क्या कहा, इलाही क्या खबर थी, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तेरा साक़ी कौसर यहाँ तशरीफ लाएगा। खबर क्या थी, यहाँ तेरे नमाजी आके ठहरेंगे, शहीद आराम फरमाएंगे, गाजी आके ठहरेंगे। मालिक, मुझे पता होता तूफान नूह मेरे ऊपर से गुजरा था, मैं कोई पानी जमा कर रखती, आज इन गाजियों को, इन मुजाहिदों को मैं पानी पेश करती, मैं शबनम के कतरे जमा करती रहती, और आज तेरे रसूल के गुलामों को वो पानी पेश कर देती। मुझे क्या पता कि मेरे भी मुकद्दर जागेंगे। तेरा साकी कौसर यहाँ जलवागर होगा, तेरे महबूब के प्यारे कदम इस खाक पे आए। इलाही हुक्म दे सूरज को अब आतिश न बरसाए, मेरे मालिक सूरज को कह दे अब ये तो ना आग बरसाए, तेरे महबूब के कदम इस धरती पे आगे हैं, और मेरे दामन से जब तेरे महबूब के गुलामों को हवाए गर्म आएगी तो मुझको रहमतुल लिल आलमीन से शर्म आएगी। या अल्लाह मेरी फरियाद पूरी कर ले। उस वादी ने फरियाद की और दुआ करते हुए वादी ने कहा, बराए चंद साअत अबरे 12 भेज दे या रब, बराए चंद साअत अबरे 12 भेज दे या रब,
बहारां भेज दे या रब, बहारां भेज दे या रब। वादी ने ये दुआ की, दुआ सहरा ने मांगी, दाम ने उम्मीद फैला कर, यका यक अब्र बारह आसमां पर छा गया आकर। मदीने की बुलंदी से जो रहमत की घटा उठी, तो इस्तिकबाल को फिरदौस की ठंडी हवा उठी। अजीब मंजर बन गया। अचानक बारिश बरसना शुरू हो गई और ये नशेबी इलाके के अंदर जो रेत थी वो जम गई और हौस पानी से भर गया। ऊपर कीचड़ हो गया, वो चलते हैं तो उनके पांव फिसलते हैं और यहां पांव जमने लगे। ये अल्लाह की पहली मदद थी जो बदर में मुसलमानों को पहुंची। रात हुई, कुफार ने ऐशो नशात की बज़्म सजाई, लौंडियां साथ आई थी और गाने वाली औरतें साथ थी जो गा गा के उनको दादे ऐश देती थी। शराबों के जाम लड़ाए जाने लगे। इधर फाका मस्तों की ये मुट्ठी भर जमात, हुजूर के लिए मस्जिद अरीश बनाई गई, एक छप्पर तैयार किया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पैरे के लिए खड़े हो गए। फरमाते हैं सारी रात हुजूर ने सजदों में, क़याम में और रुकू में गुजार दी। सारी रात अल्लाह की बारगाह में रोते रहे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे, अल्लाहुम्मा हाज़ा कुरैशुन अक़बलत बिख़ुयलाइहा व फ़ख़्रिहा तुहातुका व तुकज़्ज़िबु रसूलका अल्लाहुम्मा फ़नस्लुकल्लज़ी वअदतनी। ऐ अल्लाह, ये कुरैश बड़े फ़ख्र से आए हैं, तुझे भी झटलाते हैं, तेरे रसूल की भी तकज़ीब करते हैं। मेरे मालिक जो मेरे से वादा किया है वो वादा पूरा करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर की चादर अनवर सर से सिरक के कंधों पे आ जाती और कंधों से सिरक के हुजूर की कमर पे आ जाती और मैं हुजूर की चादर दोबारा सर पे देता और अर्ज करता, बस करो या रसूल अल्लाह, बस करो, अल्लाह की मदद आ जाएगी, बस करो। लेकिन हुजूर बार बार कहते, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। सारी रात हुजूर ने दुआओं में गुजार दी। जब सहरी का वक्त हुआ, नमाज हुई, हुजूर ने लोगों को कहा, लोगों सफ़े सीधी कर लो। हुजूर ने हाथ में छड़ी या कोई तीर पकड़ा हुआ और लोगों को कहा कि सफ़े सीधी करो। हजरत सवाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे, वो सबसे थोड़ा सा आगे बढ़ गए। हुजूर ने वो छड़ी से उनके पेट में ठोकर दी, कहा इस तरह या सवाद, सवाद सीधे हो जाओ। तो हजरत सवाद सीधे हो गए। साथ ही अर्ज करने लगे, हुजूर मुझे इसकी बड़ी तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है, मैं आपसे बदला चाहता हूँ, किसास मांगता हूँ। सारे सहाबा उनके कान खड़े हो गए, इस हालत में ये क्या कह रहा है? हुजूर ने फरमाया, अच्छा बदला ले लो। अर्ज की, हुजूर जब आपने मुझे छड़ी मारी थी तो मेरा पेट बरहना था। हुजूर ने ज़िरा के बंद खोल दिए और पेट नंगा कर दिया। हजरत सवाद ने जब हुजूर के चमकते हुए बदन को देखा, फ़क़ब्बला बदनहु, तो चिमट गए और हुजूर के पेट को चूमने लगे। हुजूर ने फरमाया, सवाद तुझे इस चीज पे किसने उभारा? अर्ज की, हुजूर मंजर आपके सामने है, मैं इसलिए ये काम किया है कि आखिरी वक्त मेरा बतन आपके बतन से छू जाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सफ़ों को सीधा फरमाया और फिर जाके हुजूर ने सजदे में सर रख दिया और फिर हुजूर ने एक ऐसी दुआ मांगी, आज तक ऐसी दुआ किसी ने नहीं मांगी हुई। बड़ी नाज वाली दुआ, बड़ी अंदाज वाली दुआ, ऐसी दुआ आज तक ना किसी ने मांगी और ना कोई मांग सकता है। हुजूर ने पेशानी सजदे में रख दी, आंखों में आंसू हैं। ये फाका मस्त लोग कितारों में खड़े हैं, उधर कुफार शराबों के नशों में धुत ललकार रहे, हल में मुबारज़िन, आओ हमारे मुकाबले में। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को सफ़ों में खड़ा करके आप पेशानी को मस्जिद अरीश की रेत पे रख दिया और आंखों में आंसू है। और हुजूर ने जो दुआ की लफ्ज़ सुनी, कहा, या रब्बे इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबदा फिल अर्दि अबदा। मेरे मालिक, मैं नहीं कहता इनको बचा ले, लेकिन देख इस धरती पे तेरा नाम लेने वाले यही 313 हैं। मेरे मालिक, अगर ये ना रहे तो कयामत तक तुझे भी रब कोई नहीं कहेगा। बस यही 313 हैं, यही तेरे नाम लेवा हैं। अगर अगियार ने इनको जहां से माफ कर डाला, कयामत तक नहीं फिर कोई तुझको पूजने वाला। इलाही अहद लैलतुल मिराज पूरा कर, मोहम्मद से जो वादा हो चुका है आज पूरा कर। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबदा फिल अर्दि अबदा। ऐ अल्लाह, अगर ये ना रहे तो कयामत तक तुझे भी रब कोई नहीं कहेगा। ये लफ्ज़ हुजूर की ज़ुबान पे थे और चादर सिरक के कंधों पे आ गई, कंधों से सिरक के कमर पे आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, बस करो या रसूल अल्लाह, हस्बो का या रसूल अल्लाह, हस्बो कल्ला या रसूल अल्लाह, हुजूर अल्लाह काफी है आपको। तो कहा, हुजूर बस करो, बस करो। अल्लाह की मदद आ गई, लेकिन हुजूर की आंखों में मुसलसल आंसू हैं और कहते हैं, मालिक यही मुट्ठी भर मेरी जिंदगी की कमाई है, यही 313 है तेरे नाम लेवा हुए जमीन पे। अगर ये ना रहे तो कयामत तक तुझे भी कोई रब नहीं कहेगा। फिर क्या हुआ? अचानक हुजूर ने सर उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते, मैं देख रहा था, हुजूर ने फरमाया, अबशिर या अबा बकर अताका नस्रुल्लाह हाज़ा जिब्रीलुन आखिज़ुन बिइनान फरसिही। अबू बकर बशारत हो, मुबारक हो, वो देखो अल्लाह की मदद आ गई है,
वो देखो जिब्रील घोड़े पे सवार हैं और घोड़े की लगाम को थामे हुए हैं और घोड़े के पांव के ऊपर गर्द जमी हुई है, वो देखो अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम या हय्यु या कय्यूम का वजीफा पढ़ रहे हैं। उधर काफिरों ने कहा हल में मुबारिज़ है। हुजूर ने 3 अंसारी जवान भेजे, हजरत हारिस, हजरत मुआज और हजरत मुअव्वज़। कुरैश ने पूछा कौन? कहा हम रहतु मिनल अंसार, अंसार में से हम कुछ लोग हैं। कहा जाओ चले जाओ, हमारा तुम्हारे से कोई मुकाबला नहीं, हमारे जोड़ के लोग भेजो, हम अपने जोड़ के लोगों से लड़ा करेंगे। उन्होंने आकर हुजूर से अर्ज़ की, हुजूर ये बड़े मुतकब्बिर हैं, कहते तुम हमारे जोड़ के नहीं हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम या उबैदा, कुम या हमजा, कुम या अली। उबैदा तुम उठो, हमजा तुम उठो, अली तुम उठो। कहा जाओ तुम जोड़ के हो, बल्कि इनको तोड़ के आओ। हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा तीनों गए। उन्होंने पूछा कौन? जो कि इन्होंने ज़िरे पहनी हुई थी, अपने नाम बताए। उन्होंने कहा अकफाउन किराम, हाँ अब हमारे जोड़ के आ गए। फिर हजरत अली और मुर्तज़ा झपटे और एक बार में अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। शैबा, उतबा और वलीद ये तीनों मुकाबले में आए थे। हजरत हमजा ने भी चंद लम्हों के अंदर जो है उनका काम तमाम कर दिया। हजरत उबैदा बूढ़े थे, उनकी पिंडली कट गई और पिंडली से जो है वो गोदा बाहर आ रहा था। और हजरत हमजा और हजरत अली आगे बढ़े और उनकी मदद की और उनके दुश्मन और मुकाबल को कत्ल किया। हजरत उबैदा की आंखें कुछ डूब रही हैं। फिर अचानक हुजूर नजर आए तो वहां घसीट के आपको हुजूर की तरफ करने लगे। आका करीम ने देखा तो जल्दी जल्दी आए। हजरत उबैदा ने अपना सर हुजूर के कदमों पर रख दिया और क्या कहा? कहा हुजूर क्या मैं शहीद नहीं हूं? तो हुजूर ने फरमाया अशहदु अन्नका शहीदुन, मैं गवाही देता हूं तुम पक्के शहीद हो। फिर हुजूर के कदमों पे सर रखा हुआ था कि हजरत उबैदा की रूह परवास कर गई। गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मजा सरदार मरंदा इंज आंदा, मैयत यार दे हुए थे पई होवे। हजरत हादसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक सहाबी है, उनको तीर लगा, वो शहीद हो गए। जरा मंजर देखिए बदर का। उनकी माँ को पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया, वो हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए और अर्ज करने लगी हुजूर मुझे बताएं कि मेरा बेटा जन्नत में गया या नहीं गया। अगर वो जन्नती है तो फिर मैं सब्र करूंगी, नहीं तो मैं बयान करूंगी वाह बेला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया सुनिए, क्या खूबसूरत जवाब था। हुजूर ने फरमाया आवा हबलत या उम्मा हारिसा, हारिसा की अम्मी तुझे क्या हो गया है? जन्नत एक नहीं है, जन्नत अल्लाह ने कई बनाई है। और इन्ना इब्ना का असाबल फिरदौसल आला, और तेरा बेटा हारिसा जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे फिरदौस में है। तो जब उसने ये बात सुनी ना तो वो खुशी से झूमने लगी। उसने कहा बख बख लका या हारिसा, हारिसा वाह वाह मुबारक हो तुझे, तू जन्नत का राही बन गया। अल्लाह अकबर। अब हुजूर अलैहिस्सलाम उसी छप्पर में बैठे। हज़रत मुर्तज़ा फरमाते हैं मैं जंग करता और कई काफिरों को जहन्नम रसीद करता, फिर मुझे शौक होता मैं हुजूर के पास जाता और मैं देखता हुजूर सजदे में सर रखा हुआ है और कहते हैं या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। ये लफ्ज़ हुजूर की जुबान पे मैं 3 मरतबा गया और तीनों मरतबा जो है वो हुजूर की जुबान पे यही लफ्ज़ थे और सर सजदे में था। उसके बाद फिर गुमसान का रंग पड़ा और काफिरों ने यक बार की हमला कर दिया। हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत है, फरमाते हैं जब सब ने यक बार की हमला किया ना तो हमने क्या देखा कि हुजूर भी उठ के आ गए। अल्लाह अकबर। फलक सहमा हुआ था काफिरों की चीरा दस्ती से, जमीन शक हो रही थी गलबाए बातिल परस्ती से, मगर जब कमली वाला आ गया उठकर मुसल्ले से, खुदाई हो गई महफूज काफिरों के हल्ले से, सदाए नाराए तकबीर से थर्रा उठी वादी कि उम्मत के ज़ईफों की मदद को आ गया हादी। नहत्तों को सहारा मिल गया दस्ते पैगंबर से, जमाना गूंज उठा नाराए अल्लाह अकबर से, फजा में हर समत लहरा गया इस्लाम का झंडा, बराए अहले आलम अमन के पैगाम का झंडा। हुजूर मुसल्ले से उठकर मैदान में आ गए। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि काफिरों पर सबसे बढ़कर जो आगे हमला करता था वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर बढ़ बढ़ के हमला करते थे और फरमाया कूमू इलल जन्नत अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, निकलो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। हुजूर ये पढ़ते जा रहे थे कूमू इलल जन्नत, बढ़ो बढ़ो जन्नत की तरफ। एक सहाबी थे अल्लाह अकबर, वो कहने लगे बखिन बखिन या रसूल अल्लाह अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, वाह वाह हुजूर क्या जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है? हुजूर फरमाया हाँ अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़। तो वो खजूरें खा रहे थे, उन्होंने खजूरें फेंक दी। कहा फिर मेरे और जन्नत के रास्ते में ये खजूरें रुकावट बनी हुई है, और मैदान में कूद गए और दादे शजात देते हुए जामे शहादत नोश कर दिया। फिर अबू जाल ने सोचा कि ये तो पासा पलट गया, तो उसने कहा आवाज दो लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है तुम्हारे पास उज़्ज़ा कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया तुम भी ऊंची जगह पे चढ़ जाओ, अपने गुलामों को फरमाया। और जब वो कहते हैं लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम,
اور تم جواب کے اندر کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ آواز دو، اب یہ آواز دی جا رہی، کیسا منظر ہے بدر کا، اللہ اکبر، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آ گئے، 9 عمر، کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا۔ وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے، لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا، جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا۔ جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، ننھی ننھی تلواریں، چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور محفظ افرا کے بیٹے، یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور، ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا۔ یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے۔ حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں حضور۔ فرمایا لاؤ اپنی تلواریں۔ تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا۔ تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر موقع پہ قتل ہو گئے، 70 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، باقی دم دبا کے بھاگ گئے اور سخت راسیمگی کا عالم، نعرے تکبیر کے لگ رہے ہیں۔ صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں۔ آواز آتی ہے اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ ہیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ جبریل کی آواز ہے اور ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو کہتا ہے تو بھی آگے ہو جا۔ شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا، وہ بھی جہاد میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اسلام کی فتح کی، اسلام کو کامیابی دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا وہی اس کو دے دیا۔ فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، عکاشہ اس کے ساتھ کھڑا۔ کہتے ہیں جب یوں لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار رہی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا۔ وکان لا یدری ایو عینیہ اصیبت، حضرت قتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی، یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یہ حضور کے لعاب کی برکتیں تھیں۔ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ حضور علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے، راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا رضیت یا رسول اللہ، حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہو گیا۔ کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے، اگر اجازت دے تو آنا ہے، تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضور فرمایا چلے جاؤ۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی۔ یہ آگے آگے چلے گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ، اور جا کے لوگوں کو کہا لوگوں مجدہ باد، مبارک ہو، ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ابو البختری قتل کر دیا گیا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے۔ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ 70 ان کے قتل ہوئے اور 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے، 13 موقع پہ اور 1 راستے میں۔ اب منافق تو کہہ رہے تھے اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے پاس کی بات ہی نہیں، ان کے پاس تو کھجوروں کے ڈنڈے تھے، تلواریں بھی کون تھی، یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو، تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہے وہ تو حضور کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے، یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو، اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ایک طرف کیا، میں نے کہا احقا ما تقول یا ابن رواحہ، اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ای واللہ، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ کافر بھاگ گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گواہیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے اور اونچی اونچی آواز کیا لگاتے تھے؟ وہ کہتے تھے قتل ابو جہل الفاسق، وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضور کے استقبال کی۔ آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا، اور آج میں اس کو مختلف خطبے سید سے پڑھ رہا تھا، کیسا وہ خوبصورت منظر
कि जब हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर के चेहरे पे तमानियत का नूर था, चेहरा चमक रहा था, और जब हुजूर ने कदम मदीने में रखे तो बनु नज्जार की वही बच्चियां दफ लेकर आ गई, और उन्होंने छतों के ऊपर चढ़कर वही गीत जब हुजूर आए थे तो गाया था, आज फिर उनकी जुबान पे है, तलअल बद्र अलैना मिन सनियतिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, कि वो देखो चांद तुलू हो गया विदा की पहाड़ियों से, वो देखो चांद चढ़ गया है। और हुजूर यूं तशरीफ लाए मदीना के अंदर, अल्लाह ने इस्लाम की अजमत के झंडे गाड़ दिए, और इस दिन को मेरे रब ने भी यौम फुरकान कह के पुकारा। 22 रमजान को हुजूर ने मुराजात फरमाई, और जुमे का दिन था जब हुजूर मदीना शरीफ पहुंचे। अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह दे दी, मुट्ठी भर जमात, 313 अफराद, और उनके बदन के ऊपर चिथड़े थे, बल्कि उमैर बिन वाहब, ये अबू जहल का जासूस था, उसने कहा जा मुसलमानों की तादाद देकर आके दुनिया। उमैर बिन वाहब जब वापस पलटा तो उसने तला दी कि मैंने खूब वादियां टीले देखे हैं, कुमक भी पीछे मौजूद नहीं, वो सिर्फ 3 ऊंट खा सके, यानी सिर्फ उनकी इतनी तादाद है। अबू जहल कहने लगा फिर तो 300 के आगे पिछले। कहा हाँ, कहा उनके पास असले भी बड़े थोड़े, बदन पे जो कपड़े हैं उनको पैबंद लगे हुए, पेट भी उनके कमर से जुड़े हुए। अबू जहल ने सनादीद कुरैश को अपने खेमे में बुला लिया, कहा सुनते हो उमैर की रिपोर्ट, कल लड़ाई की नौबत नहीं आएगी, रस्सियां इकट्ठी करो और उन्हें जकड़ जकड़ के ऊंटों की पुश्तों से बांधना, और फिर जाके हरम की दीवारों से बांधना, लोगों को तमाशा दिखाना कि ये नए दीन के दावेदार थे। जब सनादीद कुरैश को बुलाकर ये रौनक भरी बात अबू जहल ने कही, तो उमैर जो मुसलमानों को देकर आया था, उसने जो जुमला कहा वो सुनिए। उसने कहा बला किन रायतो या माशरा कुरैश अल बलाया तहमिलुल मनाया, ए कुरैश के सरदारों तकब्बुर में ना आओ, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि यसरब की ऊंटनियां अपनी पुश्तों पे निरी मौतें उठा के ले आई, और तुम कहते हो रस्सियां इकट्ठी करो, मेरा मशवरा मांगते हो तो रात की तारीकी में भाग सकते हो तो भाग जाओ, उस कौम से लड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं है जो मरने के लिए आई है, और मैंने जख्मी सांपों की तरह उन्हें पेचुरताब खाते हुए देखा है, वल्लाह कल उनमें से कोई मरेगा नहीं जब तक तुम में से एक एक को लड़ नहीं जाता हो, और अगर इतने लोग तुम्हारे मर जाएं तो फिर अफसोस है तुम्हारे जीने पर। तुम कहते हो रस्सियां इकट्ठी करो, मेरा मशवरा मानो तो रात की तारीकी में भाग जाओ, उस कौम से लड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं। फिर अगले दिन मेरे रब ने भी उस दिन को यौम फुरकान कह के पुकारा। हम जब 313 थे तो जबर के खिलाफ जो खड़े हुए और जुल्म का सर भी तोड़ा और फख्र भी तोड़ा। आज दुनिया के ऊपर 1 अरब 40 करोड़ इंसान दरमांदा, खस्ता और बदहाल है। आज हाल ये है, काबुल से कंधार तक, किला जंगी से दश्ते लैला तक, तोरा गोरा से तकरीर तक, मूसल से बगदाद तक, जावा के साहल से रिबात के कूचा बाजार तक, नील से काश्मीर तक, अल-कुद्स से कश्मीर तक, दरिया आमू की लहरों से डल झील के किनारों तक आज सम कुफर दंदना रहा है, और हम दफाई पोजीशन में भी नहीं रहे। पिछले दिन 4 मिसाइलों से हमारे वतन की आबरू पे हमला हुआ, और कितनी बदकिस्मती है, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि हम अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कहा ये बात सदर कहता तो शायद मुझे दुख ना होता, तू तो हजरत इमाम हुसैन की औलाद से ताल्लुक रखता है, तेरे पास तो 72 भी फर्द होते, वो भी मैदान में लेकर आ जाता। ये कैसे हालात आ गए और कैसे दिन आ गए। साहिबो, इस बात में तो वाकई माकूलियत है कि जब तुम कमजोर हो तो ताकतवर से टक्कर ना लो, लेकिन अगर तुम कमजोर भी हो लेकिन दरिंदा तुम्हारे घर में घुस आए और तुम्हारे बच्चों की हड्डियां तोड़ने लगे और तुम्हारे घर के अफराद का खून पीने लगे, और फिर भी तुम कहो कि हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो ये कैसी बेढंगी बात है। अब भी बला को जीने का जवाब बाकी रह गया है। जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं कि उसके लिए अहद कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर ली जाए। साहिबो, जिंदगी के ये हसी लम्हे अहले बदर की जिंदगियों से रोशनी लेकर मुनव्वर किए जा सकते हैं। आज पूरी दुनिया के ऊपर 1 अरब 40 करोड़ इंसान कभी खानमा बर्बाद न होते अगर उन्हें बदर वालों का जज्बा नसीब हो गया होता। हमारे पास आलाते हरबो ज़रब ना भी हों, लेकिन मुसलमान जब जुल्म के मुकाबले में खड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी कुव्वतें दम तोड़ जाती है, उनका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। आज हमारी बदबख्ती और हमारी रुसवाई का सामान इसलिए पैदा हुआ, हमारे पास असले भी मौजूद हैं, एटमी सलाहियत से भी हम मालामाल हैं, नहीं है तो जज्बा बदर हमारे पास नहीं है। फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर।